everyone, and welcome to a new episode of the Learners Podcast. Today we have with us Shashank Bhaiya. Shashank Bhaiya did his BSc Honours in Chemistry from Hansraj College, University of Delhi. Thereafter, he moved to ISC Bangalore to pursue his MSc in Chemical Sciences. After which, he moved to University of Texas at Austin to pursue his PhD, where he is a first-year PhD student currently. Today, he's with us to share his journey from Hansraj College to UT Austin and how he became interested in science. And currently, he's pursuing his PhD. So, all about his journey from BSc at Hansraj to PhD at UT Austin. Welcome here to the podcast and thank you for joining us. Hmm. First of all, thank you so much, Javi, for inviting me for your podcast. I will be so happy to discuss my journey with my juniors. As you told, it will be inspiring to someone. I don't know it will be or not, but I'll try my best. Thank Yeah, you. I'm sure it would be as you have taken out your valuable time to share your journey with us. I'm sure it will help the juniors in their journey and it will surely inspire at least a few, if not many. Okay, so Yes. firstly, let's start with your early journey. मतलब पहले के मतलब like आपका early life कैसी थी आप 10th तक या 12th तक थोड़ा सा बताना चाहें बैकग्राउंड के लिए. Yeah. So I'm from Bilaspur, Chhattisgarh. So initial study was like near my town. Then I moved to Shakuntala Vidyalaya at Durg, Bhilai for doing my high school. And like I was not that good student in my school, so but I used to follow the instructions of my teacher, and that's how I scored a nice score in my high school. And then I applied to Delhi University for my bachelor's in chemistry honors. Okay, okay, okay. And did you appear for any competitive exams like JEE or NEET? मतलब आपका PCM था PCB थोड़ा सा ये भी बताना चाहिए आपको. यस, तो हमने जेई का एग्जाम लिखा था, लेकिन हमसे क्लियर ही नहीं हुआ था वो एग्जाम। मतलब कट ऑफ भी Okay, पार नहीं हुई थी जेई मेंस की। okay. तो ये बात थी। So like BSc was your second choice, right? या तो पहले हमारा मन तो था वैसे बीटेक करने का कंप्यूटर साइंस में, लेकिन हमको वो ऑप्शन नहीं मिल पाया तो इसीलिए हमने फिर बीएससी कर ली। मतलब Okay, और लेकिन क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से करने का मौका मिला था, इसलिए बीएससी करने का थोड़ा इंटरेस्ट रहा कि दिल्ली जाके कुछ नया एक्सप्लोर भी कर सकेंगे। तो ये था प्रेफरेंस कि हाँ, मतलब डीयू से क्यों बीएससी करी जाए और पास से बीटेक क्यों ना करी जाए। Yes. okay, okay. So you chose BSc from a premier college rather than BTech from या not so बीटेक well फ्रॉम reputed college. गवर्नमेंट कॉलेज इन नियर बाई प्लेस। Okay, okay, okay. So coming to the BSc, how was your BSc at Hansraj? तो बीएससी एट हंसराज, बीएससी मतलब शुरुआत का पहला समय तो पूरा तो शुरुआत का जो 1.5 साल था वो तो कोविड में निकल गया। तो ऑलमोस्ट Right. हमारे 3 सेमेस्टर कोविड में निकले। लास्ट के थर्ड सेमेस्टर में कॉलेज खुला। तो मोस्टली जो फ्रेंड्स हमारे मिले थे सारे हम ऑनलाइन में ही मिले थे। तो ऐसे उनसे बातचीत होती थी। तो और जब हमने उनको सामने देखा तो अच्छा ये वही है जिसको हमने ऑनलाइन हम्म. देखा था। हाँ तो जी, हाँ जी. ऐसे मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस अलग था सामने मिलने का और ऑनलाइन बात करने का। तो ऐसा रहा इनिशियल का। और क्या बताएं इसमें। And academic life at Hansraj, like how did you expect DU to मतलब DU कैसा होगा आपने सोचा होगा और असलियत में आपको कैसा लगा DU ऑफलाइन वाले में. हम्म। तो ऑफलाइन वाला डीयू बहुत ही बढ़िया था। ऐसे तो हम 4 दोस्त रहते थे एक रूम में, मुरली, अमन, आशुतोष और हम। हम्म. तो वही लाइक रात को बाहर घूमना, 24/7 जाना, राइट, कॉलेज के आसपास चक्कर लगाना, बर्थडे मतलब कॉलेज के हॉस्टल गेट के सामने बर्थडे मनाना। तो राइट, राइट, वही सेम लाइफ जो मतलब ऐसे अभी भी दिखती होगी डीयू कैंपस में, वही राइट, सेम हमारी भी थी। तो बहुत ही मजेदार था वहाँ पे, मतलब हंसराज के पास रहना। हम वैसे पी ब्लॉक मलकागंज में रहते थे, ओके, कॉलेज के ओके. एकदम ठीक सामने ही। तो राइट, पोस्ट बहुत ऑफिस बढ़िया के पास. एक्सपीरियंस था वो भी। हाँ, पोस्ट ऑफिस के थोड़ा सा आगे, लक्ष्मी नारायण राइट. मंदिर के पास। या ओके. So it is a great pleasure for me to have my senior on this podcast, and it is a great honor to have you. Or also, आप मतलब like I've seen you in college, and I've been an anchor in your farewell also. So that was a great experience. But I couldn't हम्म। interact with you because उस समय like interaction इतनी नहीं होती थर्ड और फर्स्ट ईयर के अंदर. Although मतलब थोड़े कुछ सीनियर को जानता था, but anyways, great to interact with you today. Yeah. So academic life कैसी थी आपके हंसराज के अंदर? एकेडमिक लाइफ तो मतलब शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगलिंग था, क्योंकि केमिस्ट्री राइट. ऐसे बहुत ज्यादा हमको आती नहीं थी।
और ऑनलाइन में इतना सीख नहीं पाए थे। राइट। तो ऑफलाइन में जब रेनू मैम की क्लास होती थी या फिर ज्योति मैम की क्लास होती थी, तो उन क्लासेस में मतलब थोड़ा पीछे ही बैठते थे और बीच में बैठते थे, जिससे कि मैडम देख ना ले कि क्या लिख रहा है ये। तो राइट राइट। ऐसे थोड़ा बच के बैठते थे, लेकिन फिर भी मतलब एंड ऑफ सेमेस्टर कुछ ना कुछ सीखा थोड़ा बहुत ऐसे। और मतलब क्लास मतलब बहुत ही बड़ी, और खासकर हमको प्रैक्टिकल ज़्यादा पसंद आते थे, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में बहुत लंबे प्रैक्टिकल होते थे हमारे, मतलब ऑलमोस्ट 4 घंटे के। चार तो घंटे उसमें बहुत कुछ सीखने मिलता था, मतलब मैडम से पूछ रहे हैं क्या हो सकता है, कैसे मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट होगा, क्या गलती कर रहे, तो वो गलती कर करके सीखते थे। और दोस्तों के साथ सब मिलकर एक्सपेरिमेंट करते थे, मतलब बहुत मज़ा भी आता था। तो राइट मोस्टली हमको लैब ज़्यादा पसंद थी, जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब होती थी, फिजिकल केमिस्ट्री लैब होती थी, ये सारी चीज़ें। राइट राइट राइट। एंड कोई आपका फेवरेट सब्जेक्ट बीएससी के मतलब दौरान को फेवरेट सब्जेक्ट? तो अभी तो मोस्टली हमारा जो रिसर्च है वो फिजिकल केमिस्ट्री पर है, ओके स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके हाँ। ओके। पर बीएससी के दौरान मतलब जो आपको उस समय देख रहा तो आपको फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी पसंद थी बीएससी के टाइम पे? ओ, बीएससी के टाइम में ऐसे तो हमको थोड़ी मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा पसंद थी। ओके। तो वो शायद इसलिए था क्योंकि थ्योरी अलग होती है और प्रैक्टिकल अलग होता है। राइट राइट तो राइट जब राइट। हम पढ़ते हैं बुक्स में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसा सोचते हैं कि ये रिएक्शन ऐसा होगा, लेकिन जब लैब में जाके देखते हैं उस चीज़ को, तो वो कुछ अलग ही होता है। और राइट उसमें और उसके पीछे जो मेहनत होती है वो भी राइट अलग होती है। तो राइट। वो चीज़ जब मतलब जब रियल लाइफ में देखो तो थोड़ा अलग होता है, तो वो रियल लाइफ में देखने के बाद हमको थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो इसलिए ऐसा था। ओके। एंड हाउ वाज योर मतलब प्रिपरेशन फॉर जैम, लाइक मतलब आपने कब से स्टार्ट किया था और जैम की जर्नी कैसी रही थी आपकी? तो जैम की जर्नी थी, तो जैसे हमने हमारे रूममेट्स के बारे में बताया, तो हम्म। उसमें मतलब मोस्टली उनका भी हाथ था कि उनने कहा कि हम जैम की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, तेरा क्या है? तो हमने कहा कि यूपीएससी का सोचा था, यूपीएससी का, राइट। लेकिन लग तो रानी महल, तो हाँ दिल्ली आ जी। गए, तो इससे अच्छा जैम की प्रिपरेशन करते हैं। तो वही राइट। साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। तो प्रिपरेशन के टाइम में हम 5 दोस्त थे जो लोग साथ में कोचिंग जाते थे। ओके। अनिकेत, आशुतोष, लक्ष्य, हम और अमन। ऐसे मतलब 5 लोग जैम की प्रिपरेशन करते थे साथ में। ओके तो ओके। मोस्टली साथ में कोचिंग जाना, साथ में आना, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं करना। तो ऐसे मतलब मोस्ट ऑफ द समय हमारा सब साथ में निकलता था। हाँ और जी। तो मतलब ऐसे बातें भी कर रहे हैं तो मोस्टली यहाँ मतलब कि इस तरीके से इस चीज़ को पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे। राइट। तो थोड़ा सर्कल ही वैसा था कि एक गोल के ऊपर ओरिएंटेड, कि सब वही करना हम्म चाहते हैं। हम्म। तो ऐसा था। और तो मोस्टली हमको मतलब समय लगा जैम के प्रिपरेशन, अराउंड 1 साल लगा, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री इतनी बढ़िया थी नहीं। ओके। तो धीरे धीरे करके लगा, मतलब कुछ लोग होते हैं जो लोग एक सेमेस्टर में लास्ट में पढ़ के जैम का पेपर क्लियर कर लेते हैं, लेकिन हमारे हम्म केस में वैसा नहीं था, क्योंकि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट इतने अच्छे नहीं थे हाई स्कूल में। तो हम्म। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, और हमारे सर का भी हाथ था, मतलब जिनसे हमने पढ़ा, डॉक्टर कुलदीप गर्ग, जो मतलब ओके। उनका पढ़ाने का स्टाइल भी बहुत अलग था, जिससे मतलब जो जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी सीख जाएगा। और हमेशा कांस्टेंट मोटिवेशन की क्यों पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाई से क्या हो सकता है। तो मतलब उनका भी बहुत बड़ा हाथ था ऐसे सिखाने और पढ़ाने में। हम्म। हम्म। ओके। एंड आपने मतलब कितने टाइम तक करी थी जैम की कोचिंग, लाइक मतलब 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए? तो मोस्टली मतलब ज्वाइन तो ऐसे थर्ड थर्ड सेमेस्टर की बात कर ली थी। हाँ तो जी। मोस्टली और स्टार्टिंग हुई थी जब हम लोग फाइनल ईयर में थे, तो गर्मी की छुट्टियां होती हैं, तो उसमें हाँ जी रेगुलर हाँ जी। क्लासेस लेना जैम की। ओके। तो ऐसे थोड़ी इंटेंस हुई, और जब फिफ्थ सेमेस्टर में आए, सॉरी या जब सिक्स सेमेस्टर में आए, तो उस समय क्लासेस कम जाना, जैम के लिए ज़्यादा समय देना। राइट, जो तो इस एक महीना तरीके होता है से जनवरी वाला। हाँ हाँ। हाँ, जो जनवरी जो या जो सिक्स सेमेस्टर स्टार्ट होता है उसमें जनवरी के टाइम में मोस्टली टाइम जैम की प्रिपरेशन को देना, मतलब राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, बार बार चीज़ों को लिख कर देखना, याद करना। तो वैसा मतलब लास्ट में थोड़ा इंटेंस रहा, शुरुआत में थोड़ा कम था, लास्ट में जब एग्जाम पास है तो थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी, ऐसा था। ओके। एंड फिर जैम का एग्जाम हुआ था आपका 2023 में, आई गेस? हम्म। हाँ जी हाँ जी। सो जैम का एग्जाम कैसा रहा था आपका? जैम का एग्ज़ाम बढ़िया था, मतलब आज से तो ठीक ठाक रैंक है हमारी 347। और हाँ जैसे जी। हमने कहा था हम 5 दोस्त प्रिपेयर कर रहे थे साथ में, हम्म। पांचों का ही हो गया आईआईटी जैम में। और ओके। बात ये थी कि लेकिन सबका अलग अलग कॉलेज में हुआ। राइट। एक आईआईटी बॉम्बे में, एक आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, और हमारा आईआईएससी में। ओके ओके। सबका अलग अलग जगह हुआ।
राइट, सो आपका एक प्रॉपर मतलब एलुमनाई नेटवर्क अपना हो गया होगा, राइट, हर आईआईटी के अंदर। हाँ एलुमनाई नेटवर्क आपका मतलब अच्छा बन गया होगा प्रॉपर, ऐसे इफ यू वांट आपको पूरे इंडिया के कनेक्शन होगा आईआईटीज हाँ, के अंदर। वही इसीलिए मतलब समझ लो किसी भी बड़ी जगह जाना है तो वहाँ हाँ मोस्टली जी। अगर दोस्त रहते हैं तो उनके यहाँ पर जाके रुक सकते हैं हम, तो राइट ये राइट बहुत राइट। बढ़िया था। हाँ जी। तो लक्ष्य भैया हम्म। वाज इन आईआईटी बॉम्बे, राइट? यस। और या। बाकी अमन था आईआईटी रुड़की में, ओके। अनिकेत था आईआईटी मद्रास में, हाँ जी और हाँ जी। आशुतोष था आईआईटी दिल्ली में। एंड अनिकेत भैया इज राइट नाउ इन उपसला, राइट, स्वीडन में। हाँ वही। ओके 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 ओके। सो आपने फिर उसके बाद आईएससी ज्वाइन करी, राइट? सो हम्म। आई कम टू दैट कि मतलब आपको आईआईटीज तो ऑब्वियसली मतलब मिल रहे होंगे ना। सो व्हाई डिड यू हाँ। जॉइन आईएससी ओवर आईआईटीज? व्हाई डिड यू चूज आईएससी ओवर आईआईटीज? यस। सो आफ्टर bachelor's I got a chance to do an internship at IISER Pune. ओके। Yes, and there I came across like know more about IISc कि वहाँ पर रिसर्च होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रिसर्च होती है, और सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मतलब सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट साइंस का IISc है। ये था एक राइट मतलब, और ऐसे कोई ज़्यादा मोटिवेशन नहीं था कि मतलब वही था कि देखा जाएगा, मतलब सबसे मतलब इतना नाम है IISc का और रिसर्च वहाँ की बहुत ही बढ़िया है। तो ये था कि सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है साइंस का, तो वो ज्वाइन करके देखना चाहिए। ये। ओके। सो आईएससी के नेम की वजह से आपने उसको ज्वाइन किया, राइट, हाँ। रिसर्च। तो डिड यू हैव हाँ। एनी मतलब नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिसर्च, या फिर वो ग्रेजुअली हो गया, और डिड यू गो विद द फ्लो ओनली कि लाइक जो होगा देखा जाएगा इस हिसाब से, या फिर आपको स्टार्टिंग से था डिड यू वांटेड टू पीएचडी? नहीं, तो स्टार्टिंग से हमारा मन नहीं था पीएचडी का, तो हमने जब आईसीबी ज्वाइन करी तो वहां पर जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे, जो हमारे प्रोफेसर थे, उनने पूछा कि मतलब सारी बैच से पूछा तुम्हारा क्या करने का मन है। तो उसमें जो कुछ बच्चे थे, मतलब मोस्टली रिसर्च वाले थे, कुछ बच्चे थे नहीं हमको प्लेसमेंट चाहिए, उसमें हमारा भी था कि नहीं सर हमको प्लेसमेंट चाहिए, हम कंपनीज को अप्रोच करेंगे, आप चिंता मत करो, हम आपको बता देंगे ओके। कहाँ कुछ करना है। तो हम उस ग्रुप में थे कि हमको प्लेसमेंट चाहिए, हमको पीएचडी नहीं करनी है। तो ऐसे स्टार्ट हुआ आईएससी में हमारा कि हमको प्लेसमेंट लेनी है, रिसर्च नहीं करनी है। ओके। यस। So you chose ISC, but you wanted to take placement and get to a हाँ। company, right? Okay. हाँ। And how was your ISC वाली journey? Like जो अपने 2 साल वहाँ पे spend करे हो, कैसे गए थे आप? हाँ, तो आईएससी की जर्नी भी बहुत ही स्पेशल है। जैसे हम बाकी दोस्तों सुनते थे आईआईटीज में कि उनका सिलेबस जो जैम का पढ़ के आए, मतलब Right, या फिर थोड़ा सिमिलर है, कोई मतलब एकदम रेगुलर सिलेबस है। और right, आईएससी में देखा कोई सिलेबस ही नहीं है, वो रिसर्च पेपर से पढ़ा रहे हैं, और मतलब मोस्टली चीज़ें खुद से लेकर आते हैं। तो इसलिए बहुत ही नया था हमारे लिए, मतलब रिसर्च पेपर पढ़ने की आदत तो थी नहीं, और right. उस तरीके से पढ़ने की भी आदत नहीं थी। तो शुरुआत का सेमेस्टर थोड़ा बहुत कठिन रहा, ऐसे हमारा पहला सेमेस्टर निकला, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ गए कि किस तरीके से पढ़ना होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे मतलब समझ में आ गया कि पैटर्न क्या है आपने पढ़ने का अडेप्ट यहाँ कर पे। लिया वहाँ से, right? हाँ वही। Okay. तो आपका प्रोजेक्ट मतलब किस एरिया में था? आईएससी बैंगलोर में मास्टर थीसिस आपकी होती है, तो आपने किस कंट्री हाँ। मतलब किन कंट्री करी थी, एंड आपका क्या एरिया था? सो आई वर्कड अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर ई अरुणन, and my master's project was basically from two departments, inorganic physical chemistry and aerospace engineering department. ओके So ओके। yeah, so like if I'll elaborate more about my project, so you know about rocket fuels, right? राइट राइट। तो उसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मीथेन, इथेन, राइट ब्यूटेन, प्रोपेन, राइट? तो हमारा गोल ये था कि जो रॉकेट फ्यूल्स के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे इथेन हो गया, मीथेन हो गया, तो उनकी स्टडी करना और देखना है कि आखिर डिकम्पोज कैसे होते हैं। ओके। मतलब जैसे और इनकी स्टडीज से क्या होगा कि हम एक एफिशिएंट फ्यूल बना सकेंगे। राइट जैसे कि राइट। तुम्हारा इथेन है, इसमें मतलब साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है। तो अगर तुमको पता रहे कि कौन कौन मतलब कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कितनी जल्दी बर्न होता है, अगर तुमको उसकी मतलब टाइम स्केल मालूम हो, कैसे डिकम मतलब क्या मैकेनिज्म है उसके डिकम्पोज होने की, तो तुम उन सेलेक्टिव हाइड्रोकार्बन्स को लेके एक मतलब फ्यूल बना सकोगे जो कि ज़्यादा कंपोजिशन अलग एफिशिएंट करके। होगा। हाँ, मतलब कंपोजिशंस वेरी करके। तो ओके। हमारा वो गोल था, तो हमारा हमको एक हाइड्रोकार्बन मिला था, साइक्लो इथाइल साइक्लोपेंटेन। तो उसकी डिकम्पोजिशन स्टडीज हमको करनी थी, मतलब शॉक ट्यूब्स का यूज करके, तो बहुत ही हाई टेम्परेचर दे करके वो मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है, फिर उसकी स्टडी करते हैं। तो एक ओके। प्रोजेक्ट ये था। और दूसरा ऐसे एक कंप्यूटेशनल प्रोजेक्ट था कि जैसे जो हम लोग फंडामेंटल पढ़ते हैं ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल राइट इंटरेक्शंस। राइट। हाँ तो जी। ऐसे कुछ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और ओके।
उसको डिफाइन करना बहुत आसान नहीं, मतलब कुछ लोग वेंडर वॉल बॉन्डिंग कहते हैं, कुछ लोग नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन कहते हैं। तो ऐसे हमने कुछ कॉम्प्लेक्स की स्टडी करी और कहा कि नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस कहते हैं, लेकिन उसको मतलब और कुछ जैसे चार्ज डाइपोल इंटरेक्शंस भी कह सकते हैं। मतलब बहुत हम्म, डिटेल में तो थोड़ा टाइम लगेगा बताने में, तो ऐसे सिर्फ सुपरफिशियली बताया कि मतलब नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस को डिफाइन करना, ऐसे उनकी स्टडी करना। तो ये भी था एक प्रोजेक्ट, मतलब से 2 प्रोजेक्ट पर काम किया था हमने। okay, okay. So your matlab main supervisor was Professor Aaron, right? यस। Yeah, okay. So I saw his office when I was there for my interview. I guess in June. His office is on the ground floor, right? The ground floor front office. यस, Yeah. ग्राउंड फ्लोर। Okay. 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 Yeah. How did your मतलब like फिर से हम रिसर्च पे आएंगे. So रिसर्च की जर्नी कैसी रही थी आईएससी में मतलब आईएससी में? रिसर्च की जर्नी तो जब शुरुआत में लैब ज्वाइन करी थी, तो उस समय तो फोर्सफुली लैब जाते थे कि नहीं यार, लैब तो जाना चाहिए मतलब टाइम पर। तो इस तरीके से लैब जाना चालू किया था, लेकिन जब वहाँ सीनियर्स को देखा, उनकी डेडिकेशन देखी और जो उनकी एंजॉयमेंट थी, मतलब कि कोई भी मतलब रोज अलग अलग होता था। कभी मतलब बहुत ही खुश हैं क्योंकि उनका रिजल्ट आ चुका है, और कभी कभी एक Right. हफ्ते 2 हफ्ते निकल गए, उनका कुछ काम नहीं चल रहा है। तो लेकिन मतलब इस सिचुएशन में भी वो हमेशा काम रहते थे, मतलब बहुत ही पेशेंस था उनके अंदर। तो वो चीज़ें मतलब थोड़ी इंस्पायरिंग थी कि नहीं, लैब आके मतलब एक बार इस चीज़ को भी ट्राई करना चाहिए। तो वैसे वहां से हमने रिसर्च स्टार्ट करी कि हाँ मतलब एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर हमको ये पसंद आया तो। ऐसे धीरे धीरे जब लैब में काम करना चालू किया, तो एक पॉइंट के बाद ऐसा था कि खुद से मन करता था कि नहीं, अब लैब चलना चाहिए, काम करना चाहिए। हम्म, क्योंकि वहाँ सीनियर से मतलब हेल्प करने के लिए कि नहीं चलो इस चीज़ को ऐसे ट्राई करते हैं। तो मतलब बहुत सी नई चीज़ें सीखने मिलती थी उनके साथ। तो इसलिए मतलब लैब में टाइम स्पेंड करना खुद ब खुद मन करने लगा एक समय के बाद। हम्म। और बाकी आपका मतलब थोड़ा कोर्स स्ट्रक्चर बताएंगे एमएससी का. लाइक हाउ इज एमएससी कोर्स स्ट्रक्चर एट आईएससी. मतलब कितने सेमेस्टर आपके कोर्सेज चलेंगे एंड कोर्सेज कैसे हम्म। कैसे होते हैं मतलब थोड़ा सा डिटेल में आप जाना चाहें तो. तो आईसी में कोर्सेस मतलब जैसे एस रेगुलर आईटी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में होता है, मोस्टली सेम ही है। बस जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। ओके. तो ये था कि बस, लेकिन हम लोग को लास्ट सेमेस्टर में एक एमएससी प्रोजेक्ट करना होता है, तो उसके लिए लैब डिसाइड करनी होती है। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, मतलब आइडियली वो सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर में काम, मतलब एक सेमेस्टर की लैब होती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं आईसी में कि वो ऑप्शन देते हैं कि तुम किसी भी लैब में जहाँ तुम्हारा मन है वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बाकी आईटीज में शायद सीपीआई के राइट बेस पे लैब मिलती है। राइट 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 लेकिन राइट. आई आईसी में वांटेड हमारे टू. पास ऐसा हाँ तो जी हाँ जी. हमारे यहाँ ऐसा ऑप्शन होता है कि बच्चे प्रोफेसर्स को अप्रोच करते हैं, और उनको अगर प्रोफेसर्स की लैब में फंडिंग है और अगर जगह है, तो वो उनको मतलब कि ऑप्शन देते हैं कि तुम हमारे यहाँ लैब में काम कर सकते हो। तो इस तरीके से आईसी में ऑप्शन होता है। तो हमने तो समर में ज्वाइन कर ली थी, मतलब सेकेंड सेमेस्टर के बाद। ओके. तो हमारे पास पूरा 1 साल से ज़्यादा का टाइम था हम्म लैब में हम्म स्पेंड करने का। हम्म. तो ऐसा रहा, मतलब लैब में शुरुआत से ही एक्सपोजर मिला लैब में, जो मतलब कि काम करने का, कि एक मिनी पीएचडी लाइफ कह सकते हैं कि कैसा राइट. एक्सपीरियंस होता है एज अ रिसर्चर। हम्म. So your work was on experimental plus computational both, right? हाँ, एक्सपेरिमेंटल और कंप्यूटेशनल दोनों ही रहा। Okay, okay. And then आपकी MSc complete हुई in May 2025, right? हाँ, 2025। Okay. And how did UT Austin happen? मतलब क्या उसकी जर्नी रही थी? I want you to focus on that in detail because those who are listening might be waiting for this question कि आप कैसे IAC से UT Austin गए? मतलब थोड़ा सा उस बारे में डिटेल में बताइए प्लीज. हम्म। तो इनिशियली तो इसमें हमारे सीनियर्स का भी इन्फ्लुएंस रहा। तो मतलब जो हमारी सेकंड बैच थी आईसी में, हाँ तो जी हाँ हमने जी. हमारे Yes. सीनियर्स को देखा कि उनने क्या किया है। हम्म. तो मोस्टली वो भी मतलब हमारे बहुत सीनियर आए यूएसए पीएचडी करने के लिए। तो उनने हमको बताया कि देखो ये मतलब इस तरीके से रास्ता होता है ऐसे पीएचडी, मतलब कि ये चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए। टॉफल होना चाहिए, तुम्हारे पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इतने प्रोफेसर के एलओआर लगते हैं, कैसे तुम एलओआर ले सकते हो, कैसे पीएचडी एप्लीकेशंस के लिए मतलब प्रिपेयर करना है, कब से कब तक की डेडलाइन होती है, कैसे चीज़ों को मैनेज करके चलना है। तो वो ने एक बार बस आइडिया दिया ऐसा कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा हमने किया था। और फिर अगेन जो हमारे वहाँ दोस्त थे, वहाँ का सर्कल जो हम्म. साथ वाले थे, हम्म. उन सबका मन था कि हाँ हमको तो पीएचडी करनी है बाहर से, यूएस से। तो सभी मतलब प्रिपेयर करने में लगे थे कि नहीं, मतलब
ऐसा था कि लोग बहुत कॉम्पिटिटिव भी थे, लेकिन साथ ही साथ बहुत सपोर्टिव भी थे। सपोर्टिव इन द सेंस, मतलब कि कहीं के एप्लीकेशन है जहाँ फी वेवर मिल रहा होगा, तो वो हम्म दूसरे को बता देगा कि यार यहाँ पर फी वेवर मिल रहा है, तो देख ले, अगर तू भी अप्लाई करना हो यहाँ पे तो। अगर मतलब हमको उस दोस्त की फील्ड पता है कि उसको ऑर्गेनिक में करना है, तो अगर कोई बढ़िया प्रोफेसर दिखा तो उसको बता देगा कि ये एक प्रोफेसर यहाँ पर काम करता है, अगर तेरे इंटरेस्ट का हो तो ऐसे मतलब हम्म कॉम्पिटिटिव था, लेकिन लोग बहुत सपोर्टिव थे कि मतलब सबका हो जाए काम बढ़िया। तो इस हम्म तरीके से मतलब हमारे दोस्त थे। तो साथ में हमने मतलब स्टार्ट किया प्रिपरेशन। तो सबसे पहले तो टॉफल आता है, मतलब राइट उसकी उसके लिए प्रिपेयर करना टॉफल के लिए। तो मतलब उसके लिए मटेरियल जो था वो हमारे सीनियर ने दिया था कि ऐसे ये बुक रेफर कर सकते हो, ऐसे यूट्यूब पर बहुत सारे जो टेस्ट सीरीज हैं, मतलब उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऐसे मतलब दोस्त मतलब जो मेन थे, सब साथ में बैठ के प्रैक्टिस कर लेते थे हमारे दोस्त। वैसे तो हम दो थे, दिव्यम और हम, मोस्टली जो साथ में प्रैक्टिस किया करते थे। हम्म तो ऐसे हमने टॉफल के लिए प्रिपेयर किया। तो ये बात थी हमारी थर्ड सेमेस्टर की, क्योंकि जो ओके यूएस के एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं उनकी डेडलाइन होती है अगस्त 1 से December 1। तो ओके वो हमारा पीक टाइम होता है थर्ड सेमेस्टर, जिसमें हमने लिए थे 3 कोर्सेज, लोग 4 कोर्सेज भी लेते हैं। तो हमने हम्म इस मतलब 3 कोर्सेज इसलिए लिए थे कि थोड़ा टाइम एप्लीकेशंस को दे सकेंगे, कोर्स वर्क से टाइम बच जाएगा। तो ऐसे थर्ड सेमेस्टर में हमने मतलब चीज़ों को मैनेज करके रखा कि मतलब एक तो लैब में काम करना है थोड़ा बहुत, क्योंकि लैब का जो काम रहेगा वो हम अपने एसओपी में भी लिखेंगे। मतलब जब अप्लाई करेंगे तो लिखना होता है कि क्या कुछ काम हमने हम्म किया है और किस बेसिस पर हमको मतलब रिसर्च एक्सपीरियंस है जो हम मतलब वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। एक तो वो था, फिर उनके लिए मतलब अब जो मटेरियल है एप्लीकेशन के लिए, एसओपी लिखना हो गया, और जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो प्रिपेयर करना, और फिर साथ में कोर्स वर्क भी करना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल रहती थर्ड सेमेस्टर में करना। लेकिन फिर भी मतलब जैसी संगत होती है खुद ब खुद मन वैसा बन जाता है। राइट राइट तो राइट क्योंकि हमारे जो दोस्त थे वो हमसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, कि लैब हम्म में भी उनका बहुत बढ़िया से काम कर लेना, और कोर्स वर्क में भी उनके बहुत अच्छे नंबर आते थे, और एप्लीकेशंस भी मतलब बहुत ध्यान देते थे। तो और उनसे भी मतलब हमेशा इंस्पिरेशन मिलता था, नहीं यार कर, तू भी क्या कर रहा है, करना चाहिए अप्लाई। तो क्योंकि जब अप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जैसे मान के चलो तुम कह रहे हो कि भैया आपको यूटी ऑस्टिन मिल गया, तो हमने बाकी बहुत सी जगह अप्लाई किया था। राइट 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 और जब अप्लाई करते हैं तो कोई चांस नहीं होता कि एकदम मिल ही जाएगा। मतलब ऐसा हम्म एकदम रैंडम होता है कि तुम बस अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हो कि इसी से स्कूल्स में एप्लीकेशन डालने का, और मिल गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, मतलब तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुम्हारी प्रोफाइल बहुत अच्छी भी है, कभी कभी अच्छी नहीं है, तो भी मिल जाता है। तो सिर्फ तुम्हारे हाथ में इतना है कि तुम बस अप्लाई कर सकते हो। और ये ऐसा वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है कि मतलब बहुत पैसे खर्च होते हैं शुरुआत में, लेकिन एक बार जब हो जाता है कहीं सिलेक्शन, तो कुछ महीने के अंदर वो पे बैक भी हो जाते हैं। राइट राइट तो ऐसा था ये एक्सपीरियंस मतलब यूएस का, मतलब ओके अप्लाई करने का। हम्म। तो आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया था और तो ऐसे हमने 7 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, अलग अलग। मतलब ओके ब्राउन हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन हो गया, हम्म कैलटेक हो गया, और राइस हो गया, हम्म कार्नेगी मेलन, और ये यूटी हम्म ऑस्टिन। ओके ओके सो आपको एक्सेप्टेंस कब आई थी यूटी ऑस्टिन से एक्सेप्टेंस हमको आई थी फरवरी में। तो मतलब ऐसा था कि हमको सिर्फ एक ही एक्सेप्टेंस मिली 2025 में, यूटी ऑस्टिन ओके से। ओके यस, और बाकी कॉलेज से हमको नहीं मिल पाई थी एक्सेप्टेंस। ओके सो आज से एक साल पहले आपको मतलब इसी टाइम के अराउंड आपको एक्सेप्टेंस लेटर आया था हाँ मतलब शायद January 27, मतलब ऐसा एंड ऑफ जनवरी में। एक साल हो चुका है उस चीज हाँ। को हाँ, ओके मेल आया था कि यू आर सिलेक्टेड। ओके ऐसा। ओके ओके तो इन दिस एप्लीकेशन प्रोसेस आप मतलब किन्हीं प्रोफेसर को मतलब स्पेसिफिकली आप लिखते हैं कि आपको इनके अंडर काम करना है या फिर आप उनको मेल करते हैं मतलब थोड़ा सा ये बताइएगा हाँ, तो यूएस में ऐसा होता है कि तुम डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन डालते हो ओके कि एक, जैसे यहाँ पे कॉलेज ऑफ नेचुरल साइंसेस है, तुम कॉलेज ऑफ नेचुरल साइंसेज में पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ऐसे एज अ एक पर्टिकुलर प्रोफेसर के अंडर नहीं कर रहे। ओके तो तुम जो अपनी एसओपी बनाते हो उसमें प्रोफेसर्स का नाम लिखते हो कि ये प्रोफेसर में हम इंटरेस्टेड हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस चीज़ पर काम किया हुआ है, और इनके यहाँ पर उनका नेक्स्ट मतलब उसका नेक्स्ट स्टेप होता है, तो हमको ये चीज़ें आती हैं और हम यहाँ जाके ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि हम रेलेवेंट हैं और एक मतलब कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट हैं उनकी लैब ज्वाइन करने के लिए। तो इस तरीके से मतलब यूएस में लिखते हैं। और तो ये मतलब ऐसे जैसे कि तुमने सुना होगा कि कोल्ड मेल करते हैं प्रोफेसर को, वो भी करते हैं लोग यूएस में, लेकिन हमने ऐसा नहीं करते, मतलब हमारे पास समय नहीं था इतना कि ओके प्रोफेसर को कोल्ड मेल कर पाए। बस अप्लाई किया था, मतलब एसओपीज में नाम लिखा था उनका।
हम्म। तो एक्सेप्टेंस लेटर के बाद से मतलब फिर आप अपनी थीसिस अपनी कंटिन्यू रखी होगी, राइट? थीसिस अ, आपकी चल रही होगी ना उस समय तो हाँ, नियर तो द जब कंपाउंड। एक्सेप्टेंस था फिर, हाँ बस हमारा मतलब फोर्थ सेमेस्टर में सिर्फ एक नहीं दो कोर्सेज थे हमारे। ओके। मतलब बहुत फोर्थ सेमेस्टर बहुत इजी हो जाता है फिर, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर हम्म। सबसे कठिन हमको लगा था थर्ड सेमेस्टर, क्योंकि बहुत सारा काम था उसमें। फोर्थ सेमेस्टर हम्म। उतना ही आसान हो जाता है। इस मतलब अब एक्सेप्टेंस आ चुका है, दो कोर्सेज बचे हैं। ओके। मतलब रिसर्च का काम भी तुमने मोटा मोटा कर ही लिया, बस लिख के जमा, मतलब सिर्फ प्रेजेंटेशन और थीसिस सबमिट का काम बचा है। हम्म। तो जो उसके बाद का समय वो थोड़ा रेस्ट वाला समय हो जाता है। तो ओके। ऐसा बहुत ही या बढ़िया था मतलब फोर्थ सेमेस्टर का टाइम, क्योंकि मतलब बाकी दोस्तों के साथ खेलने में तुम समय लगा सकते हो, वेकेशन आउटिंग में टाइम। जा सकते हो। हाँ, वेकेशन टाइम समझ सकते हो, क्योंकि मेहनत कर राइट। चुके हैं थर्ड सेमेस्टर तक। ओके, हम्म। सो अभी आप मतलब किन प्रोफेसर के अंडर कर रहे हैं आपका मतलब पीएचडी? एंड आपका प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, थोड़ा सा फील्ड और थोड़ा मतलब ब्रीफली उसके बारे में। हाँ, तो जो अभी हम हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, और हमारे प्रोफेसर हैं प्रोफेसर लॉरेन वेब। तो जो भी हमारी फील्ड है वो है बायोफिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके। ओके। तो इस चीज में हमारा क्या है कि जैसे जो प्रोटीन प्रोटीन की इंटरेक्शन स्टडी करना, तो जनरली लोग मॉलिकुलर डॉकिंग करते हैं, ये सब चीजें करते हैं, या फिर एक्सपेरिमेंटली टेक्निक्स यूज करते हैं। तो हमारा तो जो हम एक्सपेरिमेंटली टेक्निक यूज करते हैं, मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स की स्टडी करते हैं जब प्रोटीन प्रोटीन के इंटरेक्शंस के बीच में। तो उसमें हम आई स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि इसमें सबसे पहले हमको प्रोटीन एक्सप्रेशन करना होगा, मतलब जैसे जो बायोलॉजी लैब में होता है, जो लोग प्रोटीन एक्सप्रेशन करते हैं, जीन एक्सप्रेशन करते हैं, तो उसमें हमारा पहला गोल रहेगा कि प्रोटीन बनाना, कि जिस प्रोटीन की हम स्टडी करना चाहते हैं। और फिर उसको मतलब सिंथेसिस करने के बाद अब उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज करना है, कि जब वो दो प्रोटीन इंटरैक्ट कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना रोल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे क्या हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस फिनोमेना को, कि क्यों ये दोनों प्रोटीन बाइंडिंग कर रहे हैं, इस तरीके से। ओके। ओके, या सो ये प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल है फील्ड, राइट? हाँ, तो अभी जो हमारा है वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल है। हम्म। एंड क्या ड्यूरेशन रहती है मतलब यूएस में पीएचडी की अप्रोक्सीमेटली? तो यूएस में मोस्टली 5 से 5.5 साल की होती है। अब लोग सोचेंगे कि 5 साल तो बहुत लंबा टाइम हो गया, तो लेकिन जब यहाँ यूएस आते हैं तो जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें तुमको लैब खोजनी होती है कि कौन सी लैब तुम ज्वाइन करना चाहते हो। मतलब भले तुमने पहले से लिखा हुआ है कि हमको ये 3 प्रोफेसर में इंटरेस्ट है, या फिर ये 4 प्रोफेसर इंटरेस्ट के हैं, लेकिन उनकी लैब में भी रोटेशन करोगे, है ना, और साथ के साथ कोर्सेज भी अटेंड करोगे। और तुमको शायद टीए भी करना हो सकता है, टीचिंग असिस्टेंट, कि लैब्स में पढ़ाना। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने में और फिर लैब खोजने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो शुरुआत के 6 महीने ऐसे निकल जाते हैं कि लैब मिलने में। तो अब तुम्हारे पास बचे सिर्फ 4.5 साल। और फिर अब तुमने कोई लैब ज्वाइन करी है, तो यहाँ पे ऐसा है कि तुम, अगर तुम समझ लो एक्सपेरिमेंटल काम किया है और तुम कंप्यूटेशन में जाना चाहते हो, तो ये भी मतलब यहाँ उस चीज़ को ये बहुत मतलब बढ़िया समझते हैं कि हाँ ये लड़का कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है अलग फील्ड में। मतलब ऐसा नहीं होता कि जिस चीज़ में तुमने एमएससी करी है उसी चीज़ में तुम्हारी पीएचडी होनी चाहिए, तो तुम अलग चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे हमारा कोई बायो बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि हमने पीसीएम लिया था 12th में। मतलब बायोलॉजी हमने पढ़ी ही नहीं कभी 11 12th में, लेकिन जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसमें प्रोटीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें अब हम मतलब अभी सीख रहे हैं, अब तो इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ऐसे करते करते इसीलिए थोड़ा सा शुरुआत का समय 1 साल सीखने में निकल जाता है, और जब तुम सीखते हो फिर एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है यहाँ पर, मतलब सेकेंड ईयर के बाद। तो वो, तो उस क्वालिफाइंग एग्जाम के बाद तुम एक ऑफिशियल ग्रेजुएट स्टूडेंट कहलाते हो। तो उसके बाद तुम्हारे पास अराउंड 3 से 4 साल का समय होता है तुम्हारे रिसर्च फिनिश करने का, थीसिस जमा करने का। तो आइडियली मतलब इस कारण जो यूएस की पीएचडी वो थोड़ी लंबी हो जाती है, 5 साल 5.5 साल तक चली जाती है। तो ये रीजन हमको आने के बाद समझ में आया। मतलब पहले तो था 5 साल तो बहुत लंबा होता है, क्यों ना जर्मनी चले जाए या फिर यूरोप चले जाए, जहाँ 4 साल में हो जाएगा पूरी थीसिस, मतलब पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी। तो वो चीज़ यहाँ के समझ में आई कि क्या अंतर है यहाँ पर थोड़ा। हम्म। एंड आपकी भी पीएचडी मतलब कैसे चल रही है? लाइक आपको मतलब मजा आ रहा है और यूएस का एनवायरनमेंट कैसा है? पीएचडी तो मतलब सेम है, जब तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होंगे और हम्म। मतलब तो तुम्हारा मतलब बढ़िया होगा। मतलब और कभी कभी अगर चीज़ें नहीं चल रही होंगी तुम थोड़े उदास भी होगे। मतलब जैसा कर्व कहते हैं कि अप्स एंड डाउन्स वाला, सिमिलर ही है। साइन तो वेव। कभी चीज़ें, हाँ, तो कभी चीज़ें बहुत अच्छी होती है, कभी चीज़ें अच्छी नहीं भी होती हैं। बस वही है कि मतलब पीएचडी में आदमी ये भी सीख जाता है कि कैसे
इस चीज़ों को भी हैंडल किया जाए। और जैसे यूएस में है कि हाँ, जैसे इंडिया में क्या होता है कि पीएचडी में है तो मेस में हमारा खाना मिल जाता है, तो वो ज़्यादा रिसर्च पर समय देते हैं। तो यूएस में क्या है कि सारी चीज़ें खुद से करनी होती है, तुम्हारी ग्रोसरी का सामान, घर का काम, फिर खाना बनाना। तो और तो इन सब चीज़ों को भी मतलब साथ में कैसे मैनेज करना है, पढ़ाई के साथ रिसर्च के साथ, तो ये चीज़ें भी जब तुम बाहर जाते हो तो तुमको सीखने के लिए मिलती है, अगर तुम यूरोप या फिर यूएस जाते हो ऐसे पीएचडी करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें का भी एक्सपीरियंस होता है, तो ये बहुत एक बढ़िया एक्सपीरियंस हमको लगा यहाँ के कि मतलब खुद से सीखना, काम करना। घर पे तो क्योंकि सब बना बनाया मिल जाता था, या फिर कॉलेज में तो सब मेस हम्म। में मिल जाता था, लेकिन यहाँ खुद बनाना है। तो ओके। ये है यहाँ की लाइफ। और रिसर्च एनवायरनमेंट कैसे डिफरेंट है, मतलब इंडिया और यूएस का, लाइक अप्रोच जो रहती है एकेडमिक और रिसर्च बोथ? हम्म। तो इंडिया और यहाँ पे देखो रिसर्च में ये डिफरेंस है कि इंडिया में मतलब चीज़ों को करने में टाइम बहुत लगता है। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, एक्सआरडी करनी है या फिर सेम टाइम करना है, तो उसके लिए जो स्लॉट्स हैं वो तुमको मिलेंगे एक हफ्ते दो हफ्ते बाद, अगर तुम छोटे इंस्टीट्यूट्स में हो तो मतलब वो फैसिलिटी जो रिसर्च की है वो थोड़ी मिलना मुश्किल है। और यहाँ पर क्या होता है कि वो चीज़ें मतलब वो तुमको खुद से ट्रेनिंग कराते हैं, और फिर तुम अपने हिसाब से टाइम स्लॉट बुक कर सकते हो कि कब तुमको जाके वो मेजरमेंट्स करनी है। तो उस चीज़ों के कारण क्योंकि वो मतलब फैसिलिटीज यहाँ पर ज़्यादा मिल जाती हैं, तो तुम्हारी रिसर्च थोड़ी जल्दी हो जाती है। ओके। तो ये एक बड़ा डिफरेंस लगा हमको वहाँ और यहाँ में। और हाँ, और बाकी जो हमारे इंडिया के रिसर्चर्स हैं वो मतलब कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और पैशनेटेड होते हैं। तो मतलब वो चीज़ तो इंडिया में हमेशा रहेगी। और यहाँ भी वैसे लोग थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस पर भी ध्यान देते हैं कि हम ओके। मतलब पूरे हफ्ते में 40 घंटे काम करेंगे, तो फिर क्योंकि हम बाकी फिर आउटिंग भी जाएंगे और बाकी चीज़ें भी एंजॉय करेंगे, तो ऐसा थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलते हैं कि जिससे मतलब हम रिसर्च पर भी फोकस कर सकें, लेकिन और साथ के साथ हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर भी थोड़ा ध्यान दे सकें। तो ये थोड़ा डिफरेंस लगा हमको वहाँ की पीएचडी और यहाँ यूएस में। For example, I want you to, give some advice to younger Shashank Bhaiya who is, pursuing his first year of BSc from Hansraj or so, मतलब किसी भी कॉलेज से, जो अभी बीएससी के हम्म। अंदर है, आप उनको क्या एडवाइस दोगे इफ ही वांट्स टू, इफ ही इज नॉट सर्टेन कि उनको मतलब कोई और उनको यूपीएससी या फिर कैट करना है, एंड ही इज फ्लेक्सिबल, जिसको कि वो रिसर्च भी कर सकते हैं, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस दोगे? हम्म। तो उनके लिए जैसे अगर तुम अभी बैचलर्स में हो तो तुम्हारे पास बहुत ये ऑप्शन है कि तुम बहुत से क्लब्स ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सी सोसाइटीज ज्वाइन कर सकते हो। जैसे हम थे एज अ पार्ट ऑफ मतलब रासायना तुम्हें थे, हम हेड ऑफ स्पॉन्सरशिप, राइट। और राइट। फिर राइट। स्टिग्मा की में थे पब्लिक रिलेशन हेड में। तो उन चीज़ों मतलब ऐसे बहुत सी क्लब्स में तुम ज्वाइन कर सकते हो, तो वो तुमको एक आइडिया देता है, मतलब तुम बहुत से लोगों से इंटरेक्ट करोगे जिनके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, अलग अलग गोल्स राइट। होते हैं कि हमको कैट करना है, हमको जैम करना है, हमको यूपीएससी करना है। तो तुम ऐसे जब बहुत से लोगों से मिलोगे और जब तुम अपना ऐसे मतलब काम करोगे सोसाइटी के लिए, है ना, तो तुमको मतलब तुम्हारी स्किल्स ग्रो होंगी और तुमको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि नहीं मेरे को ये चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है, मेरे को थोड़ा बिजनेस की तरफ ज़्यादा मन है, या फिर मेरे को कैट में मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा मेरा, या फिर मेरे को साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो ऐसे चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। और जैसे लोग कहते हैं कि हमको रिसर्च नहीं करनी है, तो जैसे हम भी सेम थे कि हमको रिसर्च नहीं करनी थी, लेकिन जब एक बार उस चीज़ का एक्सपोजर मिलता है, मतलब क्योंकि अभी तुमने देखा नहीं वो चीज़ आके होती कैसी है, और क्योंकि तुमने सिर्फ किसी से सुना कि रिसर्च में ऐसी होती है, पीएचडी वालों की लाइफ बहुत बेकार होती है, मतलब वो लोग कोई हैप्पीनेस नहीं है, दिन भर बस लैब में जाते हैं, लैब से आते हैं और ऐसा कुछ खास उनका जॉय है नहीं। लेकिन जब तुम खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो तो तुमको ज़्यादा अच्छा आइडिया मिलता है कि नहीं क्या मैं तो शायद रिसर्च में बहुत ही अच्छा हूँ, क्योंकि मैं वैसे उस तरीके से सोच सकता हूँ और आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो मेरे लिए अच्छा होगा। तो ऐसे मतलब तो ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए सिर्फ किसी की बातों को सुन के कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन क्योंकि तुमने बहुत सी चीज़ें देखी नहीं है अभी, है ना, तभी तुम सिर्फ बैचलर्स में हो। तो हम ऐसा सजेस्ट करेंगे कि कोई इंटर्नशिप कर सकते हो शॉर्ट टर्म किसी मतलब अच्छे कॉलेज में। तो मतलब प्रोफेसर को मेल करके कि सर हम मतलब कि हम इस कॉलेज में हैं, हम मतलब हमारे पास कोई रिसर्च का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हम मतलब एक बार ट्राई करना चाहते हैं, अगर हमको ऐसा मतलब आपके लैब में ऑप्शन मिलता है एक छोटा सा इंटर्नशिप करने का तो हम बहुत ही थैंकफुल होंगे आपके लिए, इस तरीके मतलब एक पोलाइटली उनसे आस पूछ सकते हैं। तो मोस्टली वो भी मना नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारे जो इंडिया के बच्चे हैं उनको मतलब अपॉर्चुनिटीज मिले और वो भी चीज़ों को सीखें। तो ऐसे करके अगर ऑप्शन है तो ऐसे प्रोफेसर्स को अप्रोच करना चाहिए। मतलब एक तो ये रिसर्च की जैसे ट्राई कर सकती है हमको पसंद है कि नहीं है ना। और एकदम से रिजिड नहीं होना चाहिए कि मेरे को पीएचडी ही करनी है मतलब बैचलर्स के बाद ही। तो जैसे तुम्हें अभी बीएससी में हो
तो फिर अभी जैम के लिए सोच लिया कि चलो ठीक है, एक स्टेप अहेड लेते हैं, साइंस में हमारा इंटरेस्ट है, हम्म। मास्टर्स करके देखते हैं। तो मास्टर्स में भी तुमने जब ज्वाइन किया, जब रिसर्च लैब में काम चालू किया, तो उसके बाद तुम प्रोफेसर से मिल सकते हो, और जब तुम जैसे काम चालू करोगे तो खुद ब खुद तुमको आइडिया लग जाएगा कि मेरे को मतलब बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये चीज़। और अगर तुमको एक पॉइंट में समझ में आएगा कि नहीं, ये रिसर्च हमारे लिए नहीं है, तो फिर उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं कि तुम मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, हम्म। या फिर मतलब कैट के लिए देख सकते हो, फिर या फिर एमबीए जो आजकल बहुत से लोग करते हैं। तो ऐसे हम्म। बहुत से ऑप्शंस हैं। तो वही है, अगर जब तक तुम चीज़ों को थोड़ा ट्राई करोगे कि ये चीज़ मेरे लिए सही है कि नहीं है, तो ऐसे करके थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और ग्रेट। हाँ, और अगर तुम एडवाइस लेना ही चाहते हो किसी से, तो जो उस फील्ड में बहुत सीनियर हैं, जैसे कि जहाँ, और जब तुम अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर एमएससी करते हो, तो उसमें तुमको ऑप्शन मिलता है कि जो प्रोफेसर होते हैं बहुत ही बड़े साइंटिस्ट होते हैं। राइट राइट मतलब, राइट। और उनकी सोचने का तरीका बहुत अलग होता है। जैसे हम शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, वो बहुत लॉन्ग टर्म में सोचते हैं कि अगर तुम अभी इस चीज़ को ऐसा पढ़ोगे, तो आगे चल के 10 साल, मतलब आगे 10 साल बाद ये इस तरीके से ग्रो होने वाली है। तो तुमको अगर मतलब, वो सोचने का ढंग उनका अलग होता है। तो मतलब जितने अच्छे लोगों से मिलोगे तुम, मतलब जिनकी सोच अच्छी है, जिनके विचार अच्छे हैं, और ऐसे मतलब जो एक्सपीरियंस्ड है, तो उनकी बात मान सकते हो तुम कि हाँ, अगर ये कह रहे हैं चीज़ तो हाँ ये सही होगी। क्योंकि ऐसे ही हम्म। जो हमारे प्रोफेसर थे, उनकी मतलब उनका बहुत बड़ा हाथ था कि नहीं, तुमको क्यों यूएस में पीएचडी करनी चाहिए। क्योंकि जो उनकी पीएचडी है वो भी यूएस से पीएचडी किए थे, उन्होंने यहाँ पोस्ट डॉक करी, और फिर एज अ वो फैकल्टी बने थे आईआईटी कानपुर में, फिर वो मूव किए थे आईआईएससी में। तो ऐसे वो भी अपनी जर्नी कभी कभी सुनाया करते थे कि नहीं, मतलब हर चीज़ें आसान नहीं होती है, मतलब उनकी जर्नी कैसी थी, उनने कैसे सीखा। तो इस तरीके से मतलब उससे बहुत चीज़ें सीखने मिलती है अगर तुम ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाते हो पढ़ने के लिए तो। हम्म। एंड आपकी एडवाइस एक मास्टर स्टूडेंट को जो कि अभी अप्लाई करना ये सोच रहा है अब्रॉड, मे बी यूएस और यूरोप ऑल्सो, तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? मतलब कैसे एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान पेशेंस रखे एंड मोटिवेशन मेंटेन करें, या फिर क्योंकि जो इतना टीडियस भी आपने बताया, जो आपका प्रोसेस इतना टीडियस होता है एप्लीकेशन प्रोसेस, हम्म। थोड़ा उसके बारे में। तो जो मास्टर स्टूडेंट है, ये मतलब डेडलाइन सबके लिए डिफरेंस होगी। जैसे जो कोई फर्स्ट ईयर में है तो उसके लिए गोल अलग होगा, जो अभी सेकंड सेमेस्टर में उसके लिए गोल अलग होगा, जो मास्टर्स कर चुके हैं और अभी ट्राई कर रहे हैं उनके लिए जो ट्रैक है वो थोड़ा सा अलग होगा। तो एज अ जनरल हम बता रहे हैं, तो जैसे अगर कोई अभी मास्टर्स के बीच में है और ठीक है, अभी एप्लीकेशंस की सोच रहा है, तो सबसे पहले अगर मतलब सबसे पहले उसको ये डिसाइड करना चाहिए कि उसको यूएस में अप्लाई करना है या फिर यूरोप में अप्लाई करना है। उसके हिसाब से फिर वो डेडलाइन देख सकता है कि कहाँ की कब डेडलाइन है ना। अब इसके बाद उसको देखना चाहिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको, मतलब कि अगर वो कहीं अप्लाई कर रहा है तो किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कि क्या उनको कोई इंग्लिश का एग्ज़ाम चाहिए है, उनको कैसे, मतलब उसके पास क्या उतना रिसर्च एक्सपीरियंस है कि वो अप्लाई करना चाह रहा है। मतलब मान के चलो कि अगर तुम्हारे पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो तुम हम्म। किस बेसिस पे उनको बोलोगे कि हम मतलब हमने रिसर्च करी और हम वहाँ के कुछ करेंगे, राइट। है ना। तो जैसे ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास कम से कम 6 महीने का रिसर्च एक्सपीरियंस है, तुमने कोई इंटर्नशिप करी है, या फिर अगर इंटर्नशिप ना भी करी हो लेकिन अभी तुम किसी लैब से जुड़े हुए हो तुम्हारे एमएससी में, है ना। हम्म। तो वो मतलब एक, मतलब एक तुम्हारे पास सफिशिएंट रिसर्च एक्सपीरियंस हो गया थोड़ा सा, और फिर तुम्हारे मतलब कोर्स हो गए, मतलब कोर्स में कैसा तुम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो जब तुम अप्लाई करते हो तो कि कोई एक फैक्टर नहीं होता कि सिर्फ तुम्हारा सीजीपीए हो गया या फिर सिर्फ तुम्हारा रिसर्च हो गया। तो ओवरऑल चीजें देखी जाती है कि तुम ओवरऑल कैसे हो, मतलब रिसर्च में कैसे हो, पढ़ाई में कैसे हो, तुम्हारे प्रोफेसर तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, मतलब कि क्योंकि एलओआर भी सबमिट करने होते हैं। यू आर राइट तो राइट। जैसे, हाँ, तो क्योंकि जैसे तुम्हारी रिसर्च होगी उस हिसाब से तुम्हारे प्रोफेसर एलओआर भी लिखेंगे। तो ऐसा, जैसे हम मतलब अपना बताएं तो हमारी सीजीपीए इतनी अच्छी नहीं है, हमारी सिर्फ 8.4 के अराउंड है मास्टर्स में। बट आई थिंक तो आईएससी के अंदर दैट इज ग्रेट, मतलब जितना मैंने सुना है आईएससी के अपने सीनियर से, हम्म, बीइंग इन, मतलब क्योंकि एमएससी की और जो बेसिकली आईएससी की जो ग्रेडिंग होती है दैट इज वेरी हार्ड, तो दैट इज नॉट एवरेज, दैट इज अबव एवरेज, बट एनीवेज, या। हाँ मतलब कह सकते हैं एवरेज के आसपास थी, क्योंकि जो हमारे दोस्त हैं उनकी तो बहुत अच्छी है वैसे, ठीक है। ओके तो ओके। ऐसे सिर्फ और मैं उनकी भी सिलेक्शन में अच्छी थी जगह, तो सिर्फ ऐसी बात नहीं हम्म। कि सिर्फ सीपीआई, कई लोग सोचते हैं कि हमारी 8.5 से कम है हम एलिजिबल नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब अगर कम सीपीआई है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अगर सिर्फ ओके। इंग्लिश के बेसिस पे भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा इंग्लिश का स्कोर अच्छा नहीं है तो हम अप्लाई ना करें। हमारा इंग्लिश का स्कोर 90 के अराउंड था टॉफिल में, तो कोई बात ओके। नहीं। हम्म। 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 सो भैया, लाइक मतलब जैसे जब एप्लीकेशन का टाइम होता है, राइट, मतलब क्योंकि मतलब थोड़ा बहुत तो ऐसे अप्लाई जब इंटर्नशिप्स के लिए करते हैं, कोल्ड ईमेल करते हैं,
सो मैंने जब विंटर में अप्लाई किया था, सो आई एक्सपीरियंस दिस लॉट कि यार मतलब बहुत छोड़ने की इच्छा करती है कि मतलब अप्लाई क्यों करना है, रहने देते हैं, इंडिया से कर लेंगे, ऐसे मतलब किसी का अगर लाइक ऐसे थॉट्स आते हैं। सो आपने मतलब अपने एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम पे कैसे उस मोटिवेशन को मेंटेन किया कि यार नहीं मतलब हमको अप्लाई करना है, फिर हमको एसओपी लिखनी है, फिर हमको एलओआर लेना है। सो थोड़ा सा मतलब परसिस्टेंस और पेशेंस कैसे रखी जाए उस एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम पे जब आप अप्लाई कर रहे हो पीएचडी के लिए तो। हम्म। तो ये सिचुएशन हमारे साथ भी बहुत बार हुई थी कि मतलब बीच में ही कि नहीं, अब हम अप्लाई नहीं कर रहे, इस सेमेस्टर अब हो गया, हमसे नहीं हो पा रहा ये चीज़। तो लेकिन फिर भी जो हमारे दोस्त थे साथ वाले, उनका मोटिवेशन था, फिर हमारे प्रोफेसर भी हमको कभी कभी मतलब जो जिनके हम मतलब उनसे भी डिस्कस किया करते थे कि सर हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा चल रहा है अभी, तो क्या किया जाए इस सिचुएशन में। तो वो भी गाइड करते थे कि नहीं कोई बात नहीं, चल रहा है, बाकी तो हम भी हैं साथ में, हो जाएगा। और जो सबसे हम्म। बड़ा मोटिवेशन लगा कि एक सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी होना चाहिए तुम्हारे पास। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब कभी मंदिर जाना, ऐसे मतलब हम्म। सत्संग में जाना। तो वहाँ क्या होता है कि जो लोगों के अंदर अलग ही पॉजिटिविटी होती है। हम्म। मतलब वो भले भले तुमसे साइंस के बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, या फिर तुमको ऐसा मतलब एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता पाएंगे तुमको क्या करना चाहिए उस पॉइंट में। लेकिन मतलब वहाँ जाना, उस एनवायरनमेंट में थोड़ी देर बैठना, दर्शन करना, उस पे मतलब उससे जो पॉजिटिविटी आती है, वो तुमको मतलब एक स्ट्रेंथ देती है कि हाँ आगे खुद ब खुद चीजें बढ़ने लगती हैं। और तुमको पता चलता है कि हाँ ठीक है, हम कर सकते हैं, मतलब हमारे साथ भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो राइट। इस तरीके से मतलब ऐसे अच्छे सेशंस में जाना, तो वहाँ मतलब उस तरीके से एक सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी मिलती थी हमको। मतलब हमारे आईएससी में से बहुत से इवेंट्स होते थे सत्संग वाले, या फिर पास में बहुत से मंदिर थे, तो वहाँ चले जाना दोस्तों के साथ, ये ओके। मतलब था हमारा अफसोस। Okay, so that is it for this podcast. Thank you, Bia, for joining us on this podcast and sharing with us your invaluable. Okay, सॉरी so फिर that is से। it for this podcast. Thank you, Bhaiya, for joining us on this podcast and sharing with us your invaluable insights about your experience at Hansraj, then at ISC, and your application and whole process of joining UT Austin. So, and if any of the audience have any doubt, they can write it in the comment section. I'm sure Bhaiya will take out time and answer them. Also, if anyone wants to connect with him, they can connect with him on LinkedIn. I'll mention his the link to his ID in the comments. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Take care. Bye bye.